Siddhanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Uvajayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savo Pavo Panashano Manglaninch Savvesim, Padmang Havai Mangalang. आप गायत्री मंत्र बोल सकेंगे? जी। टेक अ स्लो लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। अपनी अवेयरनेस इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे। एक और लंबी गहरी सांस के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Priti ji. Thank you for coming. हमारा ये ध्यान ग्रुप को आप पावन किया आज ऐसे आने से। प्रीति जी इज वेरी मैं अपने बारे में थोड़े से खुद से बता दूं। हाँ, इट विल एक बार लेट मी वेलकम यू एंड देन यू कैन स्टार्ट। ओके। इट्स हाँ, या ग्रेट एनर्जी यस इज यस ऑलरेडी हियर। yes, yes, yes. Priti ji is very spiritually involved. She will introduce herself and she will talk about it herself. But first time I met you was in the Ritu ji के session में। ओके। उसको first time I heard you and I was so impressed by it. So I told Rituji to send me the telephone number and I got in touch with you. And so this is how I got to know you. And, वंडरफुल। and, and it is so universe का इतना मेहरबान है हमारे पर कि जब भी मैं बुलाती हूँ सभी मास्टर को, they all are open heartedly and open handedly. They come and they just come and share their wisdom and share their meditation and divinity and frequency with all of us. Say we go up and up, higher and higher. All of us are. And thank you for coming. And go ahead. This platform is all yours. Wonderful. Thank you so much. Yes, it's a great service that you are doing. And, we also get the opportunity to meet different groups of people. If I'll bring something and if you question it differently, then I will know about it more, you know. So, um, I like this number 22. It's like following me all over my spiritual life. Since my birth, it's my birth date, Wow. February 22nd, Yes. 1982. So it's like Very keeping nice. me in like sync always. Very Yes, nice. Master. So my name is Preeti Prasad from India. I am from Jharkhand, Ranchi, and Uh, here I one live in minute. Phoenix, One Arizona. minute. 1 minute. Are you co-host already? I think you Yes, are. yes, Okay. yes. अपने को स्पॉटलाइट कर सकते हैं आप। जी। जी। तो फिर स्पिरिचुअलिटी की जर्नी 2020 में शुरू हुई एंड इट वाज जस्ट लाइक फायर इन माय लाइफ। सो एक बार आग लग गई तो वो बुझी नहीं। प्यास बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई एंड आई वॉज डीप इन टू द ध्यान स्वाध्याय सजन संगत। बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो, ये हो रहा है। तो ऐसे ही खुद को जानने का मौका मिला एंड देयर वाज अ डीपर कनेक्शन ऑलरेडी दैट आई हैड टू जस्ट फिगर आउट। And every masters around me, they were reminding me something, but I was not understanding what they're trying to say. And then the quest was there and there was no answer outside. बाहर कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा। अगर हम किसी पे सोचते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, तो it just adds lag or delay in our spiritual path or awakening. Then I was getting quieter and quieter, and the quietness was from the self solitude. It was at times very painful and it was at times very breeze like thing. But it was as rewarding if we go through all that. And once you see yourself as a newborn child, once you see yourself where you want to be, want it to be ever, आपने अपने आप को कहीं
ड्रीम किया होगा कि मैं ऐसी होनी चाहती हूँ, एटलीस्ट नॉट देयर, लेकिन आई नो कि कहाँ देखना है, इट्स नॉट कि मैं कुछ और कर रही हूँ और मैं कुछ और होना चाहती हूँ। जैसे बाय प्रोफेशन आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड आई यूज टू लव, मैं जो काम करती हूँ पसंद से करती हूँ, चाहे वो किचन में काम करना है, कोई भी घर का काम है, या फिर हमें ऑफिस का ही मेरा वर्क था। आई वॉज गिविंग टोटल टोटल माई सेल्फ देयर, एंड आई वॉज एंजॉइंग इट, बट दैट वॉज नॉट रिवॉर्डिंग। लाइक इफ आई मेरी मर जाऊं मैं, इफ आई डाई टुमारो working the same thing, will I be satisfied at my deathbed? And then the question started. What is stopping me to quit that job? And I didn't even thought, एक बार भी सोचा नहीं कि इसके बाद क्या होगा। जिस दिन वो पूरी एनर्जी जो मैं अपने ऑफिस में लगा रही थी उसको एक दिन इतना भरने दिया, क्योंकि मुझे मास्टर्स का बहुत सपोर्ट था। लाइक आई वाज पुट इन स्ट्रॉन्ग टफ प्रोजेक्ट्स, मीटिंग हार्ड डेडलाइंस, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल ग्रुप्स एंड ऑल दैट। आई वॉज सपोर्टेड सो वेरी वेल, बट आई वॉज स्ट्रेचिंग सो मच कि मेरे को अपने स्पिरिचुअल लाइफ में सर्विस का टाइम नहीं मिल रहा था। somehow I was like open eye meditation, or being in awareness with open eyes, working and service, that was one part of me, but not the sharing part where we enrich ourselves. Then वो चीज आया एक दिन, that all of a sudden that job was gone. I resigned from that job, and it's been like 15 years I've been in IT. And then this year in April, I quit the job, and I just got this seeking. Let me see what happens. What if I die without doing anything? Would I accept myself? Or would I want to be CEO or VP or whoever? What do I want from me? How do I accept myself? How do I love myself? मैं कहाँ देखूं अपने आप को कि मैं मर सकूं चैन से? किसी को रेजोनेट हो रहा है ये बात अपने लाइफ में? तो ये वो मोमेंट है जब मैंने डिसाइड किया कि क्या होता है अगर मैं नौकरी भी नहीं करती हूँ, और मैं चलो स्पिरिचुअल सेवा भी नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, स्टिल आई एम अ मदर, स्टिल आई एम अ वाइफ, स्टिल आई हैव अ फैमिली, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और जो घर घर में चलता है उसके बिना घर नहीं चलता, वो तो चल ही रहा था, और वो हमेशा चलेगा ही। फिर भी क्या मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ? एंड आई सॉ माई सेल्फ एज अ डस्ट। धरती पे पड़ा हुआ धूल की क्या कीमत है? आई फेल्ट इट सो मच वर्दी एंड सो मच loved, I felt so much respect for that dust, कि मैं वैसे भी हूं, तो मैं अपने आप को स्वीकारूं। मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे होते से कुछ हो जा रहा है तो ठीक बात है, पर मुझे अब कुछ भी नहीं करना। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, एंड स्टिल आई नो दैट आई विल बी टेकन केयर। मेरी फाइनेंसेस नहीं रुकने वाली है, मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी होने वाली हैं, knowing that, trusting that universe, and knowing that I'm here from here now on. I'm here only to give. और वो देने के लिए मुझे कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जो मुझ मेरे पास है वो बहुत है। किसी को आज हम अपना कान भी नहीं लेंड कर पाते हैं, इतनी बातें, दुख की बातें किसी के पास होती है। और 1 घंटे का ध्यान का समय, वो शांति का समय, कोई अपने जीवन में बहुत बड़ा दीपक जलाकर आ सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था वो पहला दिन ध्यान का। और मुझे पता चल गया कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना। एंड देन इट स्टार्टेड। और ये कुछ नहीं करना, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, पर ध्यान कुछ नहीं होता है। ध्यान करना मतलब कुछ नहीं करना होता है। और जब हम कुछ नहीं करते हैं तब हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम अपने आप को एक नया रूप देते हैं, वो नया रूप जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। पुरानी चीजों को जब तक छोड़ेंगे नहीं, हाथ खोलेंगे नहीं, नई चीजें कैसे पकड़ेंगे? तो आज का टॉपिक भी यही है हमारा, नोइंग योर डिविनिटी, इंटीग्रेटिंग योर डिविनिटी। इसको समझेंगे, और इट्स अ जर्नी, और इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। हाउ मच यू इंटीग्रेट गॉडहुड इन यू, सो दैट वी नीड टू नो कि कौन है ईश्वर, कौन है मेरे लिए ईश्वर, कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज है।
मैं कहाँ देखती हूँ, कैसे देख सकती हूँ उसको? या कि हम सबको यहाँ परेशानी में छोड़कर वो भजन कर रहे हैं, वो खुद तो, हम उनकी भजन कर रहे हैं और वो खुद आराम कर रहे हैं, क्या इस तरह का भी फैक्टर है? तो हम कुछ बड़े सवाल उठाएंगे और उसके ऊपर बातें करेंगे। तो हुई ये कि जैसे ही मैंने जॉब रिजाइन किया, विद इन 2 days आई गॉट दिस इंट्यूशन। तो आई स्टार्टेड यूनिफाइड, बाबा जी का एक चैनल मटेरियल है, इट्स अ कोर्स ऑन ट्रुथ, दैट्स हाउ द बुक इज लेबल्ड, कोर्स ऑन ट्रुथ, सत्य की पाठक्रम, हिंदी में सत्य के पाठक्रम के प्रैक्टिकल गाइडेंस बाबा जी के तरफ से, टू इन यूनिफाई, यूनिफाई होना अपनी हायर सेल्फ से। हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे एक डूअर पार्ट में काम करते हैं, जो हम करते हैं वो हम अपने हायर सेल्फ के गाइडेंस में करते हैं। पर क्या हम सभी उस गाइडेंस को जानते हैं? क्या हम सभी उस कनेक्शन को फील करते हैं? या फिर हम सभी समझते हैं कि हम अकेले हैं और हम लिमिटेड हैं, हम हेल्पलेस हैं? क्योंकि अगर हम हायर सेल्फ को समझते हैं, जो हमारी पूर्ण आत्मा है, जो हमारी ओवर सेल्फ है, जिसने हमें बनाया, हमारा डिजाइन किया है, हमारे सोल का प्लान का डिजाइन किया है, उसके पास सारा ज्ञान है, तो क्या हम उससे जुड़े हैं? और जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक शिफ्ट शुरू हो जाता है। तो ये कोर्स है यूनिफाइड की, जो आजकल हिंदी में ये हो रहा है शुरू। एक्चुअली ये 24 हफ्ते का लंबा कोर्स है, जिसको हमने ऑलमोस्ट 11 हफ्ते कर लिए हैं। तो ये चल रहा है, और ये एकदम जैसे मैंने रिजाइन किया, विद इन 2 days आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम बाबा जी एंड आई हैड टू स्टार्ट दिस वर्कशॉप। तो वो शुरू किया। along with that I had that strong seeking of अंडरस्टैंडिंग, मेरा वेदों के प्रति है काफी, मुझे लगता है कि मुझे पता है। तो आई wanted टू डू समथिंग, जैसे मुझे सब कुछ फिर से याद करना है। हम बहुत लाइफ टाइम लेकर आते हैं, हर एक लाइफ टाइम में अलग अलग जीवन बिताते हैं। और जब हम ध्यान को अपनाते हैं, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तब वेदों का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जो हमने कई लाइफ टाइम्स में हम पढ़े हैं और हम आए हैं यहाँ पे, सम वॉट वो हमारे अंदर मेमोरी में है। और उसको निकालने का एक ही तरीका है कि उसको फिर से पढ़ना चालू करिए। तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक वेलनेस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस और योगा का पीएचडी प्रोग्राम चल रहा था। तो ये 4 साढ़े 4 साल का कोर्स है। तो उसको मैंने रजिस्टर किया था आज से 2 साल पहले। तो उसके साथ साथ मेरी वो पढ़ाई भी चल रही है, जो अभी मास्टर्स के टर्म्स पे चल रही है, अभी पीएचडी शुरू हो जाएगी अगले साल से। सो हियर नाउ आई एम एट द प्लेस जहाँ मैंने आईटी का जॉब छोड़ दिया है, और वहाँ पे मैं सेवा जो करना चाहती हूँ वो भी करती हूँ, मुझे जो पढ़ना है, और बाबा जी के लिए जो यूनिफाइड का वर्कशॉप है, उसके लिए जो भी सर्विसेज मैं कर सकती हूँ, जैसे उनकी जो बुक है वो हमने प्रिंट करवाई है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। विदेश में, मतलब फॉरेन में शिपिंग अभी शुरू नहीं हुए, पर हम लोग बात कर रहे हैं जल्दी से वहाँ पे भी शिपिंग करने की। तो इट्स अ वंडरफुल 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 बुक, जो हम 5D में रहने के लिए हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सहज है, वो बाबा जी ने बताई है हमको। तो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ज़रूर उस बुक को रेफर करें, ऑर्डर करें, मैं डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी। यस। तो आज ये थोड़ा कुछ मेरे बारे में। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे एरिजोना फिनिक्स में जब मैं शुरू हुई, तो कोई भी नहीं था ध्यान यहाँ पे, अध्यात्म का कोई बात नहीं। इसीलिए मैं दमयंती जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वैसे ग्रुप को रन कर रही हैं। और मैं सोचती थी कोई ग्रुप रन करता तो मैं उसको ज्वाइन करती उस टाइम पे, हमारे ईस्ट वेस्ट कोस्ट में। पर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ, ये कोई कौन होता है? ये कोई तुम ही तो हो, और कौन है ये कोई? जहां मैं अपने बच्चों को भेज दूं कि तुम जाओ वेद पढ़ के आओ, सीख कर आओ, वो कोई कौन हो सकता है? वो मैं ही तो हूं, और कौन हो सकता है? अगर मेरी चाहत है कि मेरे बच्चे वो ज्ञान पाएं जो वेदों में लिखा है, उसको सही तरीके से समझे, उसका मजाक ना उड़ाए, तो मैं इसको किसके भरोसे छोड़ दूं? वो कौन है मैं, जो मैं नहीं हो सकती? है ना? तो मेरी सीकिंग को मुझे समझने के लिए उस कोई को जानना पड़ा, वो कोई। तो मुझे मुझे मेरा पता चला कि मुझे क्या करना है। क्योंकि हमारी ग्रूमिंग जो पूरी सोसाइटी में होती है, सिर्फ कुछ बनने के लिए, सरकारी जॉब हो इंडिया में या फिर बाहर विदेश जाना है, कुछ पर्टिकुलर जॉब क्राइटेरिया, यही सब हमारी ग्रूमिंग है पूरे बचपने से। पर हम में से कोई नहीं समझता कि एक अच्छा इंसान हम कैसे बनते हैं। और बाकी हम हर चीज को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हम कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाते बच्चों को।
जबकि वो बहुत खुली आंखों से देख सकते हैं उनके जीवन में, क्योंकि इतने कर्मों का भार नहीं है, और कोई पहले से बंदिश नहीं है, आंखों में चश्मे नहीं लगे हमारी तरफ। जिस चश्मे को पहन के हम बड़ा होते हैं, उतने उसके बाद हम उसी तरह से पूरी दुनिया को देखते हैं। उस चश्मा को उतारने के लिए ध्यान करना पड़ता है, शून्य में जाना होता है, भूल जाना होता है कुछ जो कुछ काम का नहीं है। और फिर वहां से एक नई मेमोरी अपनी ब्लिस की, जितनी बार वो टच करके आते हैं हम लोग वो शून्यता को, उतनी बार वो ब्लिस मोमेंट, आहा मोमेंट को टच करते हैं। और जितनी देर हम वहां स्पेंड कर पाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, हमें लगता है ट्रांस हो गया, हम सो गए। क्योंकि हमें आदत क्या है, हमें आदत है सोच विचार को देखते रहने की। पर अगर सोच विचार नहीं है तो मैं कैसा दिखता हूँ? खाली दिखता हूँ। खाली देखते देखते मैं क्या होता हूँ? खुद भी खाली हो जाता हूँ। वो डीपर ट्रांस स्टेट है। पर मैं जब आपको बोलती हूँ अच्छा अब आंखें खोल दो, तो आप आंख खोल देते हो। तो आप उस स्थिति को समझे कि वो एब्सोल्यूट ब्लिस की स्टेट है। आप सोए नहीं है, वो आपकी डीपर हीलिंग, सोल की हीलिंग हुई है, आपने अपने सोल को एक्सपीरियंस किया है। और फिर वो ही एक्सपीरियंस आपको दोबारा ध्यान करने के लिए बुलाती है। सो इतना ब्यूटीफुल जर्नी है मास्टर्स। और चलिए फिर आज का ध्यान शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा समय बीत गया है। खूबसूरत 30 मिनट का ध्यान, पावरफुल, डेंस, सुंदर सी ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। ऑलरेडी ग्रुप में बहुत एनर्जीज हैं। सभी हम क्योंकि सीखना चाहते हैं, तो हमारी यूनिवर्स हेल्प करता है उस चीज को पाने के लिए जो हम करना चाहते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस, और पूरी तरह से इस मोमेंट में अपने आप को ले आते हैं। सारा दिन का फ्रेम बाय फ्रेम जाने देते हैं। सारी बातें यहाँ की वहां की, आने वाले कल की भूल जाते हैं। भूल जाते हैं अपना नाम पता पहचान, सब कुछ यहीं पर छोड़कर एक और लंबी गहरी सांस, और अपने भीतर की यात्रा के लिए हम तैयार हैं। अपने अंदर अफर्म करें, हमारे शब्द मैजिकल हैं। जितनी लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, सहजता से, कोमलता से, धीमे से, उतना अपने आप को खोल देते हैं शरीर में, और थोड़ा स्पेस बनाते हुए, ओपन अप होते हुए। एंड एक्सहेल एंड रिलीज। पूरे बदन की थकान को, स्टिफनेस को, कोई भी बात कहीं अटकी पड़ी है, कोई इमोशंस, सभी कुछ छोड़ देते हैं। ये एक्सहेल का काम ही रिलीज का है। एक और आखिरी लंबी गहरी सांस, सिर के, नाक से सिर के चोटी से लेकर पूरे बॉटम तक, पैरों तक, पूरा शरीर जैसे एक बॉल के जैसे। एंड एक्सहेल। अपने शरीर के अंदर बाहर चारों तरफ महसूस करके देखें, सुंदर सी ऊर्जा, और सांसों को सहज कोमल हो जाने दें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पर, आती हुई जाती सांस के साथ, भीतर, बाहर, एक भी सांस छूट ना पाए।
सांसें जैसे अंदर जा रही है वैसे वैसे राहत, सुकून। सांसें जैसे जैसे बाहर जा रही हैं, खाली होना और आसान और आसान। विचार रहित हो जाते हैं जब सांसों के साथ होते हैं, पूरी तरह से सांसों के साथ। अपने साथ भी सच्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कर कर कुछ रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। जहां सांसें वहां ध्यान। ऑब्जर्व करें। हर सांस पूरी अवेयरनेस में ऊर्जा के समान। हमारे भीतर इतनी ऊर्जा कि कोई भी लो फ्रिक्वेंसी के थॉट को आने ना दे, पूरी तरह से सांसों के साथ बने रहे। इन सांसों को महसूस कर सकते हैं अपने हृदय स्थान पर। हर एक सांस सौम्यता, कोमलता, राहत, सुकून, प्रेम, सुगंध, करुणा, आनंद, शांति, समृद्धि, अनंत ऊर्जा, प्रकाश,
शून्यता, अनंतता, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, हायर इंटेलिजेंस को हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त। हर एक सांस को और भी गहराई से देखें, महसूस करें। अगर ये सांसें नहीं होती तो कैसा होता, कितने तड़प रहे होते हैं। और इस पल में हमारे पास एक सांस के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अनंत। कौन सी अनुभूति को ला रही है? क्या सिखा रही है? हर एक सांस को महसूस करें। ये सांसें जो हमें याद दिला रही हैं, वही ईश्वर है। ईश्वर के गुणों को देखा जाए तो वो असीम करुणा, अनंत प्रेम, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश, अनंतता में विस्तारित, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, फिर भी सौम्य, समृद्ध, प्रचुरता, कमी नहीं है कुछ भी। आलोचना रहित, फ्री ऑफ जजमेंट, कटुता रहित, फ्री ऑफ बिटरनेस, ओनली लव।
वो ईश्वर एक रचयिता है, कलाकार है। सृष्टि में हर एक रचना एक विचार से हुई है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन भी। और हम भी ईश्वर के विचारों से बने हैं। ईश्वर के छवि में बने हैं। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ऑल हिज क्वालिटीज आर माइन। गॉड इज लव, so I am. God is joy, so I am. God is infinite, so I am. God is infinite peace, so I am peace. God is abundance. I am abundance. God is compassion. I am compassion. God is light. I am light. God is higher intelligence, so I am. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी। ईश्वर अनंत है, अनादि है और मैं भी। जब से वो हैं, उनके विचारों में मैं भी हूँ। उनके विचारों को मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनका विचार हूँ। अपने आप को इन गुणों से स्वीकार करें। अपने आप को इन गुणों के साथ स्वीकार करें। ईश्वर समंदर के जैसे अनंत शांति है
और मैं भी। पूरी सृष्टि में ईश्वर के ही गुण हैं। प्रेम वो एकीकृत क्षेत्र है, एक यूनिफाइड फील्ड है, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, क्रिएट हुए, और वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित है। एंड द यूनिफाइड फील्ड वाइब्रेट्स एवरीवेयर। प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि प्रेम से होती है। प्रेम खत्म तो सृजन, सृष्टि खत्म। जैसे हमने सांसों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, वैसे ही प्रेम को भी, ईश्वर का प्रेम, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं है। अपने हृदय में इन वाइब्रेशंस को दर्शाने दे। फिर से अंदर दोबारा रिपीट करें, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर आनंद है तो मैं भी आनंद हूं।
शब्दों की वाइब्रेशन हमारे एनर्जी को शिफ्ट करती है। इतने मिराकुलस पावरफुल वर्ड्स हैं ये। फील इट। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई हमें गुस्सा दिला जाता है, ट्रिगर कर जाता है, उसी तरह से ये मंत्र हमारे गुणों को बदल रही है। गॉड इज पीस, सो आई एम। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में ईश्वर ही तो है। मैं भी सर्वज्ञ हूँ। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मेरी अनंत चेतना है। मैं जहाँ जागरूक जागरूक हूँ वही अनुभव करता हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। स्वीकार करें। आई डोंट नो कि कोई स्थान नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान हमारे ही भीतर है। अपने हृदय को और एक्सपैंड करें, खुल जाने दें कि इतनी बड़ी अनुभूति को हम ले सकें। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। मैं भी अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ। जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी हमें प्राप्त होती है, चाहे तो सही, चाहे अनंत, पाए अनंत। ईश्वर प्रचुरता है, जो भी बनाया है प्रचुरता में। मैं भी प्रचुरता हूँ, बिल्कुल आसमान में असंख्य सितारों के जैसे, अनगिनत सांसों के जैसे, अनगिनत बालों के जैसे मैं भी प्रचुरता हूँ।
ईश्वर सौम्य है, जेंटल है। मैं भी सौम्य हूँ, मैं भी जेंटल हूँ। स्वीकार करें। अपने शरीर के परे हमारी क्या पहचान है? अपने 5 सेंसेस से परे हमारी क्या पहचान है? जब ईश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, तो बस हमें वो क्लेम करने की जरूरत है कि मेरा प्रेम भी अनकंडीशनल है। जब ईश्वर जज नहीं करता, आलोचना रहित है, जजमेंट फ्री है, Who am I to do that? मैं भी आलोचना रहित हूँ। हम सभी अद्वितीय हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर की अद्वितीय क्रिएशन है। हम सभी रचनाकार हैं, क्योंकि ईश्वर रचनाकार है। We are all creators। क्योंकि वो तो मेरे इंग्रेडिएंट्स है, मेरे रेसिपी में बनी है। वो मेरी रेसिपी है जिसमें मैं बना हूं। मैं सिर्फ ये 5 तत्व नहीं, 5 सेंसेस नहीं, 5 वायु नहीं, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया नहीं, उससे कहीं ज्यादा मैं ये मन, अहंकार, बुद्धि, उससे भी कहीं ज्यादा, उसके परे। जब नाम कम पड़ जाता है तो शून्य कह देते हैं, पर वो शून्य जो एक के बाद लगने वाला, अनंत, ना कि एक के पहले लगने वाला। उसी शून्यता में हमारा दिव्यत्व है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सूरज की एक किरण, सफेद प्रकाश 7 किरणों में बढ़ जाता है, वैसे ही उस शून्यता को जब खोलते हैं तो ईश्वर के दिव्य गुणों की बारिश होती है, जिससे हम बने हैं। अपनी सच्चे पहचान को आज महसूस करें। आखिरी 2 मिनट।
स्वयं का सच्चा पहचान जब अनुभव करते हैं, स्वीकार करते हैं, जीने लगते हैं, जीवन जीवंत हो जाता है। दिव्य हो जाता है। इतनी खूबसूरत गुणों से हम आए हैं इस धरती पर, सुंदर रंग बिरंगी धरती पर, क्या करने। अपने सुंदर विचारों, सुंदर शब्दों के द्वारा इस सुंदर धरती को सजाने के लिए अपने हृदय से एक ग्रैंडर अर्थ गाया। धरती पर स्वर्ग यही है, ऐसा ही है। गोल्डन एरा, सतयुग। जिसे जो मानना है उसे मानने दे। हम क्या मानते हैं वही हमारा जीवन है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा ब्रह्मांड है। इस सुंदर अनुभूति के लिए, इस सुंदर ग्रुप एनर्जीज का और यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और सभी मास्टर्स अपनी सुंदर चमकती ऊर्जा के साथ अद्भुत ग्रुप कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए सभी का आभार। इस जीवन का आभार, इन सांसों का आभार। आखिरी 30 सेकंड। दस सेकंड। धीमे धीमे से उंगलियों को खोले, पैरों को खोले, धरती पर अपने सीट को, आसन को महसूस करें, कमरे को, और धीमे से दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी बंद आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। इन्हीं हाथों के भीतर अपनी आंखें खोलते हुए बाहर आ जाएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा पानी पीना चाहते हैं, पानी पी ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर मास्टर्स। ऐसा लग रहा है कि बस समय भागे जा रहा है। दमयंती जी, कितनी देर तक हम बातें कर सकते हैं? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। जितनी देर तक आप चाहें आप बात कर सकते हैं, लेकिन वॉज अमेजिंग, अमेजिंग, अद्भुत अनुभव हुआ। Yes, I माय totally agree. माय गॉड, यू आर ट्रूली ट्रूली एंजल हम सबके लिए। यू नो, मुझे लगता है सभी मास्टर्स यहाँ हमारे साथ आ गए थे। इतनी सुगंध थी जिसकी कोई बात नहीं कर सकती मैं। आज मुझे टोटली रोना आ जाता है। आई फील लाइक क्राइंग। वाज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ट्रूली ट्रूली लव यू। आप यहाँ होती तो मैं आपको हग करती अभी।
दिस इज हाउ आई फील राइट नाउ। वो भी क्या, हो जाएगा एक दिन। इतनी हाई एनर्जी में आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। oh my God, was so amazing. You know, it's like, I don't know how to explain to you. It was so expanded. The whole like universe was with us. That's how I felt it like that. वी आर दैट। We ये are जो that. We are that. या वो अभी अभी मैं थोड़ा अनुभव करती हूँ। मैं थोड़ा देवी क्रिया में भी जाती हूँ, तो महात्मा और बाबा जी का भी अनुभव होता है उसमें, एंड आई कैन ट्रूली फील इट टुडे राइट नाउ। बाबा जी वाज हियर। बाबा जी वॉज हियर, डेफिनेटली, डेफिनेटली, नो ये जो डाउट। ध्यान है ना, ये यूनिफाइड का चैप्टर 1 है। यहीं यस, से यूनिफाइड सेशन शुरू होती है, जो एक 6 महीने का कोर्स है, जो सत्य का पाठ्यक्रम जिसके बारे में बता रहे हैं। और राइट, वो सिर्फ अपने विचारों को बताते हैं कि कैसे क्रिएशन होता है। एंड इट वाज सच अ वंडरफुल टाइम, जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया यूनिफाइड का, और उधर से सेहत वर्कशॉप शुरू हो रहा है। एंड सेहत इज यस, ऑल अबाउट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। यस, और हम यस, बाबा जी के साथ यहाँ ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और सेठ वहां आपको बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। डेफिनेटली, 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 सो अपने शब्दों को, अपने थॉट्स को बिल्कुल कम नहीं समझना है हमको। अपने आप को कम नहीं समझना है। 100%। हम साधारण लोग कह के नहीं जीना। हम जो कहेंगे हम वही बन जाएंगे। हमारा बिलीफ ही हमारा जीवन है। श्योर। अगर हमारा बिलीफ है कि हम ईश्वर के छवि में बने हैं, हम ईश्वर हैं, ईश्वर के गुण हमारे हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे ही होगा। पर अगर वो सच नहीं है हमारे लिए, इसका मतलब है कि उसके विरोधी विचार, क्योंकि डुअलिटी है, हमको फ्री विल में क्रिएट किया उन्होंने, और वही गिफ्ट भी दे दिया। अगर हम उस फ्री विल से, उस ईश्वर की, हम कहते तो हैं, कह देते हैं सहजता से, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यस, पर ईश्वर की मर्जी क्या है? ईश्वर की मर्जी है हमारी फ्री विल। और वो ये चाहते हैं कि हम जो सोचे, हम उनके विचारों के अनुरूप सोचें। हम ईश्वर को क्या समझते हैं, अगर हमारी अवेयरनेस हर वक्त वहां पर है, तो हमारे आगे लड़ाई भी होगा तो हम वहां पे प्रेम बरसा पाएंगे, क्योंकि ईश्वर वही कर रहा है। उसने तो तलवार नहीं निकाल दी, पर हम जज बन जाते हैं, ये सही है और ये गलत। यस, तो आई एम श्योर आज का ये जो ध्यान है, ये वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ब्यूटीफुल। इट्स अ डेली प्रैक्टिस, हम लोगों का महामंत्र है कि इसको जब भी हम लो फील करते हैं, इसको रिपीट करें अपने अंदर, दैट आई एम क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, एंड यस, रिमेम्बर ऑल द गॉड क्वालिटीज दैट यू नीड एट दैट टाइम। उस समय हमको क्या चाहिए? अगर हम हेल्पलेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो तो हर समय हमारे साथ है। जो लोग एंजल से कनेक्शन बना पाते, देख पाते हैं, वो देखते हैं कि कितना हमको एंटरटेन करते हैं, हमारे लिए सिंग करते हैं वो। यस, दे आर राइट विथ अस। तो हम कभी अकेले नहीं है, हमें बस अपना दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है। और वैसे ही सारे एनलाइटेंड मास्टर धरती से जो असेंड हुए हैं, उसी स्थिति में असेंड हुए हैं। जैसी स्थिति में हम जीवन गुजार देते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द लाइफ में जो हमारा माइंडसेट होता है, वही हमारी स्थिति होती है। जैसे एक दिन का एग्जाम्पल ले ले, हम पूरे दिन किस तरह का सोच रखते हैं। हम हमारे इस तरह सभी सभी तरह की सिचुएशन आती हैं दिन में, कभी पॉजिटिव, मिराकुलस, नेगेटिव और डिजास्टरस थॉट भी होते हैं। किस परसेंटेज पे हम रखते हैं अपने आप को, वैसे ही हमारी हेल्थ होती है। हमारा इनर टॉक हमारे अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करता है, इमोशंस, वही हमारे बॉडी को संरचना वो चलाता है। तो
तो हमें वहां पे अगर हम ऐसे मिरेकुलस थॉट को, ये मंत्र अगर हम जपने लग जाए सुबह शाम दोपहर 3 बार भी, और जब भी गुस्सा आए, जब भी नकारात्मकता लगे, नेगेटिविटी फील हो, जस्ट रिपीट दिस मंत्रास एंड एक्सेप्ट इट, यस वी आर दैट। वही इनफाइनाइट है। हमको समझने की जरूरत है कि कैसे ईश्वर अपने आप को महसूस कर रहा है। उस एब्सोल्यूट ब्लिस में जो ईश्वर है, उसने, एक एग्जाम्पल है ना, राजा को अगर जांच करना है कि उसकी प्रजा खुश है कि नहीं, तो राजा वेश बदल कर, वेश बदल कर उसी प्रजा में जाता है। वो कभी भिखारी बन के, कभी और गरीब बन के। तो हम वही राजा हैं, जो हम अपनी ही रचना को, है ना, देखने के लिए आए हैं, कैसा है, कैसा बना है, अभी क्या चेंज आया, इतनी लाइफ टाइम में क्या चेंज आया, और क्या करना है, और क्या नया करना है। इट इज सो एक्साइटिंग टू देम। फॉर अस यस। इट्स अ जजमेंट कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये जेल में जाना चाहिए, इसको यहाँ करना चाहिए। एक जजमेंट है। बियॉन्ड दैट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। बट बियॉन्ड दैट, गॉड इज इन ऑल ऑफ अस, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। हम्म। इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। एक बार आप रियलाइज करिए कि आप राजा हैं, आप गए हैं। या फिर ऐसे भी रियलाइज कर सकते हैं कि अगर आपने खाना बनाया है, आपने सबको खिला दिया, लेकिन आपने नहीं टेस्ट किया है, यू विश टू टेस्ट इट, खाना कैसा बना है, और फिर हम वही एक्सपीरियंस करने के लिए खाने को मुंह में डालते हैं। वही राजा, देश कैसा चल रहा है, क्रिएशन कैसा हुआ है, मेरे रूल्स कैसे बने हैं, वो बनने झांकने के लिए वो चला जाता है गांव में, वही एक्सपीरियंस करने के लिए कि मेरी क्रिएशन कैसी है। हम हर रात सोते क्यों हैं? क्या होता है नींद में? उसी शून्यता में जाके टच करके आते हैं, एक नए सेल्फ को, उस ईश्वर को, उस शून्यता जो एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जो शून्य है, जिसमें संपूर्णता है, वही संपूर्णता को हम महसूस करके आते हैं, जिसे हम पूरे दिन बिखेरते रहते हैं। छोटे बच्चों में देख लें कि सोना नहीं है, एक बार जग गए तो इतनी मस्ती, ये थोड़ा कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा वो कर ले, और फिर जब सोते हैं तो उठना नहीं है, एकदम ब्रह्मानंद में चले जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक जीवन कट जाता है इसी से साइकिल में। तो वी आर यस। दैट, यू नो। हम्म। तो आज का टॉपिक जो है, इंटीग्रेटिंग योर डिविनिटी। डिविनिटी क्या है? यही सारी डिवाइन क्वालिटीज, गॉड क्वालिटीज इज डिविनिटी, जो हम सभी के भीतर है। उनके भीतर भी जिन्हें हम पसंद करते हैं, उनके भीतर भी जिन्हें हम ना पसंद करते हैं, और जिसे हम जीते हैं, हर पल जीते हैं। पर हमसे, जब हमारी अवेयरनेस इन गुणों पर नहीं होती है, तब इसके बिना क्या है, इसके दूसरा साइड क्या है, कॉइन का। हम एक तरफ से देखते हैं तो एक ही साइड दिख रहा है, दूसरा साइड क्या है, वो भी तो एग्जिस्ट करता है। हम्म। जैसे मेरे पॉकेट में 1000 रुपए हैं, पर मैं उसको नहीं देख रहा हूँ और मैं गरीबी में जी रहा हूँ, तो मैंने गरीबी एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि मेरे पॉकेट में 1000 थे, मैं भूल गया था। हम्म। ये ईश्वर के गुणों के बिना होना ऐसा ही है। और ये ईश्वर के फ्री विल के कारण है। अपने दिव्य गुणों से, दिव्य गुण क्या है? प्रेम, करुणा, शांति, प्रचुरता, अनंतता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शांति, आनंद, प्रकाश, तेज। इन सब के बाद जो बच जाता है, उसको हम अज्ञानता में करते हैं। वो इसलिए बस चेक करने के लिए कि अगर ऐसा करें तो कैसा होगा। किसी ने सोचा है कि खाने की ये चीजें किसने चूज करी हैं? आलू खाना चाहिए, पर वो एक कुछ होता है जो जहरीला होता है, वो नहीं खाना चाहिए। कैसे चूज किया गया होगा? या तो किसी ने खा खा के मर के टेस्ट किया हो, या तो कोई उसी एक सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, जो हायर इंटेलिजेंस है, उसी फील्ड से कनेक्ट करके पता किया है कि क्या है खाने का चीज। जो हम टेलीपैथिक बातें करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है?
दैट्स बियॉन्ड एनी लैंग्वेज, दैट्स द जी। लैंग्वेज ऑफ फीलिंग। वहां से हम चूज करके आते हैं कि हमें क्या खाना है, उससे हमारी सोल नाचती है। इट्स नॉट इंग्रेडिएंट की प्रोटीन है, कार्ब्स है और क्या है नहीं है। इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स एनरिचिंग आवर सोल। जो हम पांच महाभूत तत्वों से बने हैं, उसके लिए सृष्टि की रचना में हम उसके पार्ट बनते हैं, भागीदार बनते हैं। जॉय का खाना क्या लाता है हमारे बीच में? एवरी मील फैमिली के साथ, स्पेशली जैसे ही सेलिब्रेशन का टाइम आता है, हॉलीडेज का टाइम आता है, वी कैन सी ऑल दैट। सो टू अंडरस्टैंड दैट, हमको सबसे पहला ध्यान जरूरी है। एंड टू एक्सपीरियंस दैट, वो ध्यान, और ध्यान में ये जो सज्जन संगतें हम कर रहे हैं, ऐसी बातें करना इस तरह से अपने कॉन्शियस माइंड को, जिसके पास बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। कॉन्शियस माइंड का स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मतलब उसको ट्रिगर कौन करता है? जो बाहर की दुनिया है, थ्रू आवर फाइव सेंसेस, है ना। फैक्ट्स एंड डेटा, जो आजकल हमारे न्यूज चैनल में, और हम कुछ रिसर्च पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, वो फैक्ट्स एंड डेटा। पर उसी को हम पूरा हटा करके हम यहाँ पे लगा दें, जहाँ वल्नरेबल होना हम एक्सेप्ट करने लगे, रिएक्ट करना हमारा कम हो जाए, वहां हम अपने आप को देखें, तब हम दूसरे को भी ड्रॉप करने लगते हैं। अरे, मैं भी तो ये मिस्टेक करा था जब मैं इस स्टेज में था, और अब मैं देख रहा हूं मेरे सामने होते हुए, तो उसको हम कैसे फॉरगिव करें? उसी समय ईश्वर के छवि में बना हूं मैं, और मैं अपने चारों तरफ हर किसी को यही प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। ये इस ध्यान का अगला चरण था, पर हमारे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया। बट द नेक्स्ट स्टेप was to radiate this love and light, all the God qualities that we experience, that powerful energies, अपने पूरे घर में, दीवार दरवाजों में, हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक लोगों में, पेट में, उन सभी को भेजना। ये हमें हमारी दिव्यता को जीने का एक जरिया है, एक मौका है। एंड देन हम क्रिएटर, क्रिएटर, जो गॉड क्वालिटी दिव्य तत्वों के बाद के याद दिलाते हैं कि तुम अब क्रिएटर बने हो। जब तुम इस कोई भी हम काम शुरू करते हैं, हमारा क्या माइंडसेट होता है? अगर मैं एक बिजनेस का प्रपोजल लेकर आती हूँ, फेलियर सक्सेस, अरे वो तो मार्केट में ऑलरेडी ऐसा कर रहा है, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये फियर, लॉस, है ना, इस तरह से हम शुरू करते हैं। पर एक उसी काम को हम ईश्वर के दिव्य गुणों से स्वीकार करें कि मेरे पास वो अनंत क्षमता है, मुझे जो आज तक मैंने जो चाहा वो मैंने पाया है, जो सच में चाहा है, हम सब ने अनुभव किया है। तो हम उसी तरह से इसको भी एक दूसरे लेवल पे लेकर जाएंगे। और जो हमारे जो इनर टॉक होते हैं, ठीक है, मुझे क्या जानने की आवश्यकता है वो हमें बताती है, पर हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसको मैं बना कर दिखा दूंगा, उससे भी बड़ा घर बनाऊंगा, या उससे भी कंपटीशन, जो हम पूरे बचपन से कंपटीशन के माहौल में पले हैं, तो वो चीज नहीं ला करके, है ना, किसी को नीचा दिखा करके नहीं, गिरा के नहीं, किसी का अपमान करके नहीं, सिर्फ अपने अपने ही जॉय में, अनंत जॉय में, बिना फियर के कि मेरी नौकरी चली गई है, हाउ आई एम गोइंग टू लिव। वो पैशन, वो जॉय, वो पूरा सरेंडरेंस, वो लव एक नया क्रिएशन को अपने आप ले आता है, क्योंकि वही रचनाकार का गुण है। जब हम उससे भर जाते हैं तो क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है, फिर उसे कार्विंग करने की जरूरत नहीं। शुरू में ही मिट्टी का पॉट को शेप देने में दिक्कत होती है, जब वो एक बार स्टेबल हो जाता है, इट कम्स आउट इजीली। तो उसी कच्चे मिट्टी के जैसे हम अपने गुणों से उस बर्तन को निखार रहे हैं, और वहीं पे है अपनी डिविनिटी को इंटीग्रेट करना, जानना, पहले जानना कि दिव्य तत्व क्या है, और फिर ध्यान में उसको स्वीकार करना, उसको पल पल जीना, उसको पल पल दूसरों में देखना। हाँ, मैंने भी ऐसे किया था। तो ये जो है, यहाँ पर क्षमा, और उसके साथ ही एप्रिसिएशन। कितनी भी गलतियां होती हैं, पर वहां पे एप्रिसिएशन की चीजें हम छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, ये सही है, पर तुमने ऐसा किया था, वो हम पॉइंट आउट करते हैं,
ताकि हमको लगता है हम उसको बचा दे कि अगली बार गलती नहीं करे। पर वहां हमारा कोई काम नहीं है, उसको फिर से गलती एक्सपीरियंस करना होगा तो वो करेगा। तो हमारी अवेयरनेस कहाँ होनी है? हमारी अवेयरनेस सारे दिव्य गुणों में है, ग्रेटिट्यूड में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी डिफिकल्ट टाइम आए, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, पहले स्वयं का सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने सही को, गलत को, गुणों को, अवगुणों को, वीकनेस को, स्ट्रेंथ को, सबको। जैसे है मैं वैसे ही बहुत प्रिय हूं। और अब तो मैं जान गया कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, ये तो मैंने अनुभव ही नहीं किया था। हर दिन अपने विचारों को बदलना, अलाइन करना, ईश्वर के गुणों से अलाइन करना। मेरे विचार ईश्वर के विचार के अनुरूप है। इस बुक में एक सुंदर एफर्मेशन थी जो मेरे हार्ट को इतना टच किया, लाइक आई फील लाइक सेइंग इट ऑल द टाइम। ओ गॉड, प्लीज गिव मी योर थॉट्स so that I think the way you think. I'm grateful that you made me in your image. I'm grateful to be a creator. And my thoughts are now aligned with your thoughts. फील करके देखिए, ये हमारी शक्ति को बदलता है। हम शरीर से उस आत्मा को हम समझने की कब से कोशिश कर रहे हैं, पर जब हम ये शब्दों को बोल बोल कर, रिपीट करके अपना ऑटो पायलट कर देंगे, विल बी ऑटोमेटिक क्रिएटर, विल लिव इट ऑल द मोमेंट, ऑल द टाइम। मेरे ये मेरे पीछे जो माउंटेन है ना, ये माउंट शास्ता है कैलिफोर्निया में। मैं पिछले महीने वहां गई थी, और वहां मैं एक डिवाइन पर्सन से मिली जिसने मुझे बाबा जी की बहुत याद दिलाई। और उसने मुझे यही बताया। वो मैसेंजर के जैसे मेरे सामने आके बैठ गया और 1 घंटे बातें करी, हमारे साथ ध्यान किया। और उसने मुझे बताया कि प्रीति, मैं कहीं भी जाता हूँ, सड़क पर कोई भी कभी देखता हूँ लड़ाई हो रहा है, तो मेरा ध्यान कभी भी कुछ बुरा देख ही नहीं पाता है। मैं सिर्फ ईश्वर को ही देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत प्यार आता है, फिर मैं और प्यार देता हूँ, फिर मैं और देखता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ प्रेम दिखता है। मैं कुछ और दूसरा देख ही नहीं पाता। तुम्हारे लैंग्वेज में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, पर मुझे वो सिर्फ प्रेम दिखता है। यही तो ईश्वर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम जब सोल की स्टोरी जान गए, एक लाइफ टाइम के, दूसरे लाइफ टाइम के, तीसरे लाइफ टाइम के, हम जब जान गए कि इसको हम करने से क्या सीखते हैं और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है कि सिवाय एक्सपेरिमेंट के। डू रॉन्ग, लर्न द रॉन्ग वेज, देन नो द राइट वे। मेजर एक्सपीरियंस है रावण के जैसे कि हम दोबारा रिपीट नहीं करते। पर रावण का भी देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सॉरी। नो प्रॉब्लम। कि एक रावण के बाद दूसरा रावण नहीं बना, एक हिटलर के बाद दूसरा हिटलर नहीं बना। तो वो इतना बुरा करके भी सिखा जाते हैं ना। तो हम वही देखना है हमको। वही चीज वो मुझे बता कर गया। एंड लिविंग योर डिविनिटी इज ओनली दैट। इंटीग्रेटिंग इज अ पार्ट, इट्स अ जर्नी। हर दिन हम ध्यान करेंगे, हर दिन हमारे सामने हमारे कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार कुछ हमको बोलकर जाएंगे। वो हमको टेस्ट होगा कि हमने कितना स्वीकार किया है, कितनी सहजता से हम वो बातें ले पा रहे हैं, और हम फिर भी उसको प्रेम और क्षमा दे पा रहे हैं। इस पुस्तक में हर जगह प्रेम, क्षमा और दावा स्वीकार साथ में। पहले दावा करें कि ईश्वर के जो गुण हैं पहले आप देख पा रहे हैं, अब उसको दावा करिए कि वो अब आपके पास है। उसको स्वीकार कर लीजिए, क्लेम इट, एक्सेप्ट इट। फर्स्ट क्लेम इट। 1,000 रुपया मैंने टेबल पे रख दिया, पर किसी ने आके क्लेम नहीं किया, वो पड़ा है वहीं पे। टू एक्सेप्ट इट वी हैव टू क्लेम इट। सो दीज वर्ड्स आर गिफ्ट टू अस। अगर हम लाइफ में कोई पाप नाम का चीज जानते हैं, तो अपने शब्दों को गलत तरीके से यूज करना अपने लिए खास करके, वही पाप है। क्योंकि हम आज अपने साथ करते हैं, एक बंद कमरे में करते हैं जहां हमें कोई नहीं देख रहा है, अपने बंद में करते हैं जहां हमें कोई नहीं सुन रहा है, और फिर हम सब दूसरों को देते हैं, वही देते हैं जो अपने पास रखते हैं। तो आज से हमें रखना है अपनी दिव्यता,
जो आज का ध्यान है, इसको सुबह शाम दोपहर जब मर्जी अपने अंदर याद कर लीजिए और खुद से बोल बोल कर ध्यान करें। इतना खूबसूरत जीवन हो जाता है। मेरी जर्नी यूनिफाइड के साथ 25 अप्रैल को शुरू हुई थी, और आज 9 जून, ये 2.5 महीने का सफर इतना खूबसूरत रहा है कि मैं देख सकती हूँ कि क्या क्या सफर तय किया है। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हमने बहुत जन्मों में सिर्फ ज्ञान ही पाया है, क्योंकि हम सीख कर रहे थे। और अब ध्यान में, जहां हम कुछ करते नहीं है पर सब कुछ होता है, कुछ अंडर नहीं होता, सब कुछ होता है। तो ये ब्यूटीफुल टॉक जो आज हमारी है विजडम, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम जानते हैं कि ये जीवन पूरा एक्सपेरिमेंट है, और इसको हमें पूरा निर्भयता से जीना है। जहाँ प्रेम है वहां भय नहीं, जहाँ करुणा है वहां क्षमा, जहाँ स्वीकार है वहां आभार है, जहाँ सब कुछ है वहां प्रचुरता है, अबंडेंस है। सब कुछ हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अर्न कुछ भी नहीं करना, करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो बार बार मास्टर्स बोल के गए हैं। जो मुक्त है वो आत्मा है, तो मोक्ष किसको चाहिए? व्हेन वी नो द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ का फंडा पता है, तो कितनी बार भी लाइफ लेना पड़े क्या पता चलता है। वी नो दैट वी विल बी टेकन केयर। एक दिन कोई फ्रेंड का नॉक 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 आ जाएगा, एंड वी वोंट स्लीप अगेन, वी विल बी अवेक, एंड वी विल गो एंड अवेक एवरीबडी, उठो उठो उठो। तो जिस दिन हम अपने आप को सच्ची पाते हैं, जब मैंने अपने फोटो को देखा, कुछ पिछले फोटो को देख रही थी, अचानक ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड क्राइंग दैट हाउ मच आई कर्स दिस लिटिल गर्ल। हम दूसरों की अप्रिसिएशन बहुत आसानी से करते हैं, पर हम खुद के लिए बहुत मुश्किल से शब्द निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ऐसी ग्राउंडिंग, हमारी ग्रूमिंग हुई है कि अरे घमंडी है क्या, खुद से खुद की तारीफ करते हैं। अरे शीशे में सोकर उठकर चेहरा थोड़े देखते हैं, तो कपड़े से ढक दो शीशे को। जिसका अपमान किया वो कौन है? वो आत्मा, जो शरीर ये उसका घर है। जो ईश्वर है वो घर का मालिक है, वो अंदर बैठा है, उसी को हम भला बुरा कहे जा रहे हैं। उससे मिलना नहीं, और उसको कुछ भी कह देना, जानना नहीं उसके बारे में, कुछ भी समझ लेना और कुछ भी मान लेना, और यही हम चला रहे हैं। पर बदलाव करने का एक ही तरीका है, स्वयं से शुरुआत। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और कोई अपनी Thank थॉट को ऐड कर सकते हैं, अपने जीवन के अनुभव को ऐड कर सकते हैं इसमें। Sure. Anybody wants to say something, they can unmute yourself and please share with Priti ji. Priti ji was amazing, amazing divinity ka integration with the divinity का इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आपने इतना सिंपल लैंग्वेज में, but at the same time with a grand, as a grand master, you showed us that how grand you are and how grand we all are. अपने सब में वो है, you know, वो गुण है, इसको एक्सपोज करना है, और we have to accept it, that that's what we are. So it was amazing to listen बाबा to जी, you. बाबा जी का एग्जाम्पल गॉड है, एंड उसका Yes, डेफिनेशन इनफाइनाइट है। वहां आई एम दैट आई एम, that वो है। I और बाकी तो सब टीचिंग है, बाबा जी भी बीच में नहीं आते। नहीं कहते हैं आते। तुम हमारे जैसे बनना चाहते हो तो फिर बनो, बनो, और फिर बनो। वो पूरा करो जो अनुभव तेरे नहीं है अब तक। यू नो Yes, व्हाट yes. इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड बाबा जी, कि उनको सब पता है, क्योंकि उन्होंने वो इतना उनको से- एक्सपीरियंस किया है। एंड देन द एक्सपीरियंस कम्स हमारे लाइफ में, चैलेंजेस yes, आते yes, yes, yes. And then he sits on the side and laugh on us. हैं। Yes, amazing, amazing. Thank you so much. Thank I you. am speechless. I learned total new side of life, how to think. I am positive, but I didn't think this way. So I am very thankful. I'm speechless. I have no words to tell you.
वंडरफुल। Thank you, Thank Lina. you so much. Thank you so much. यही Ye- निशब्द है, शून्यता ही निशब्द है। Yes, जैसे वो बताएं कि जैसे मुझे दिख रहा है प्रिज्म के आगे एक लाइट आ रही है और फिर वो साथ में बट जा रही है, तो यही तुम देखते हो, प्रेम, करुणा और आनंद, है ना, ये सारे जो गुण हैं ईश्वर के। तो yes, वो भी सही है और ये भी सुंदर है, दोनों अच्छे हैं। Yeah. yes. There are so many messages in the chat too. सबने appreciation. Wonderful. Yeah. Somebody shared an angel picture in the sky. I keep looking at the clouds, I talk to clouds because I keep seeing some shapes. So Yeah. amazing. So nice. So आज का session was beautiful. I'm telling you, it took Thank you so much. everybody in such a higher level today. Yes. Anybody else want to share something? Please go ahead. Anjali ji met angels today. Yes. Morning today. I thank you so much, firstly, Well, Preeti ji. Yeah, this was beautiful. Today was the first day I said, "Oh, the weather is beautiful. Let me sit outside oh and wow. try meditating." And I wasn't 100% successful, I have to admit. But when I sat, which was weird, I looked up in the sky right before meditating, and I saw like a U shape, and I saw three lines. And first in the cloud, the formation, I did not take a picture of that. And the first thing when I started meditating, I just started thinking, I'm like, what is that? And I thought of Shankar Bhagwan, which is interesting because Very I'm Jain and I don't even really pray to Shankar Bhagwan, but I pray to all God. So I saw that. And then in the middle of the meditation, I saw all these bugs try to like get on my face and all. I said, okay, it's time to go back in. I didn't realize it had got really dark. And then when I looked up, I actually saw that picture and I said, oh, I have to take this picture. I see an angel. Wow. So I think the wow. angel was blessing our whole Dhyan group today. Yes, 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 So yes. 100. Anjali ji said that she praises all the gods. So Yes. add one more god, Anjali god, there in your list. Nice. 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 Thank you A so good much. It was experience. Good experience. very good experience. But this was a Wonderful, nice wonderful. coincidence. I thought it'll be a nice, fun thing to share. Yes, 100%. It is. It is. That's why you could not meditate with closed eyes because जब हम नेचर में होते हैं ना, with open eyes also we meditate. Yes. We absorb all those beautiful energies all from all around. And sometimes there are messages in this form, right? Like even if you will look closely at the tree, it will look like something different. It will Yeah. feel like something different. Hmm. Yeah. That Yeah. can only be understood through feelings. Yes. Right. Right. Yeah. So once again, thank you so much. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Yes, I think everybody's still in the meditative group, thinking about it, all the things you said it, and was amazing. And we will have a recording. So if they want to follow it again, they can keep on doing it also. And we share the recording. We have a YouTube channel also. Oh, So great. people can go back to it again and again. Yeah, And yes, I will send you the recording also in case if sure. you want to pass it on to somebody else too, Great, and great. for yourself too. And thank you so much, Pratiji. Thank you for coming and Thank you, appreciate it thank you, thank very you much, so much. very Thank you much. so much. There's Yes, so many various ways to raise our energy, and one of that is definitely our thoughts, the way yes, we look at the life. And जब हम yes, कहते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट, कुछ भी इजी नहीं होता, तो हमें वही एक्सपीरियंस करने को मिलता है क्योंकि लाइफ हमारा बिलीफ सिस्टम है। yes, हम बोल दे कि अरे हम जो चाहते हैं वो तो हम पा ही लेते हैं, मैंने चाहने yes. में कमी कर दी है, थोड़ा सा वही. ये करना है, तो हमको वही मिलता है जो हम चाहते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो वन मोर थिंग, जो हमारा डीएमसी रैली में है, आई होप आप लोग आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एक मौका है जहाँ पे सारे फिनिक्स यूएसए के मास्टर्स एक साथ होते हैं और इंडिया से भी Right. मास्टर्स आते हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम टू रेज योर एनर्जीज। यूल Where फील Yes, is that? इट्स August एंड 30 अगस्त टू 1 September, 30, 31st and 1st, 3 days event at Raleigh. Okay. okay. Yeah. So Pari will be there, and all the masters from India, like many masters are coming, and great masters from West, they are joining us. Yes.
तो यू कैन शेयर द डिटेल्स दमयंती जी, आपके पास है वो? मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने, आई मैं couldn't, भेजती हूँ आपको, हाँ। yeah, I had to look for it. Otherwise, send it to me again, आई विल please. फॉरवर्ड, बिकॉज मैं सबको बोलती हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वंस। यू विल सी Yes, हाउ द मिराकुलस थिंग्स हैपन yes, ड्यूरिंग ऑल इवेंट्स। तो इंडिया हम definitely. जा नहीं पाते, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मीट एवरीबडी Yes, in yes, person, and in person group meditation at that yes, level of energies. And the event definitely. is free of cost. It's just that we have to pay for our tickets. Yeah. And the tickets are Um, also at discounted price at with Southwest Airlines. okay. एंड जो होटल्स है उसमें भी कुछ कूपन कोड्स हैं, तो आप लोग रूम शेयर करके बुक कर सकते हैं। सो इट इज़ Okay. वेरी मच अफोर्डेबल। एंड एनीबडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर अन्नदानम, आपकी मर्जी है, 5, 10, 20, 50, 500 कितना भी देना चाहे। सो Sure. कम फॉरवर्ड, दीज आर वन Definitely. अपॉर्चुनिटी टू सर्व all the Yes. rishis, maharishis, and brahma rishis come together to bring Right. new energies, to bring new consciousness, जो shift बराबर चल रही है। So it's Yes. part of, integral part of that। हर एक जैसे रिट्रीट है और इस तरह की जो ग्रुप गैदरिंग है, सारे टाइम हम इसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सारा सभी अपने थॉट्स, लिमिटेड थॉट्स में हमको शेयर करते हैं, फेयरफुल Sure. थॉट्स होते हैं। पर हम वहां जाते हैं 2-3 दिनों के लिए सब कुछ भूल के, we just Yeah. vibrate at different frequency and then we bring those energies, channel Yes. बन जाते हैं हम वो energies के। Yes. Yes. So Yes. they did last year, like 6 states they did a mini Dhyan Mahachakram. Right. So where there are like in every state there are a group of people, they're meeting in person, and Mm-hmm. having that energies together, coming together is a wonderful thing. If we are meditating, it doesn't mean that we just have to sit in one room and Yeah. forget about the world. But when the meditators come together, we bring beautiful energies of creation and the shift that is Yeah. going on right now. So that is one part of seva, that we just come by So being there. We we'll elevate definitely ourselves. share it. Share Yeah, करेंगे सबके साथ, you जी, know, and anybody whoever can make it, I will try to sure, do it myself sure, also. sure. I Yes. have a Yes. question, Preeti ji. जी जरूर। This thing that you're talking about, and like if somebody who can make it there, is it going to be possible that we can join via Zoom? Zoom नहीं होगा, but I think I'm sure नहीं that होगा। YouTube Live will be there. At least for Okay. meditation, it will be there. But there are many masters coming from West also. मैंने नाम I don't remember, but there are many masters from West. Like we have read their books. वो आ रहे हैं। So a lot of efforts has been put. Like the program is going to go up high in at other level. और बच्चों के लिए भी they are doing some arrangements. Like the kids program is there. Like all 3 days, they will meet all the masters, and then there will be some engagement program for them. Lovely. So come with kids, come with family, and then just live in that surrenderance. I literally saw, like, whenever I'm standing at the door, the car comes and stops. So like I don't have to do anything, and then if there's no space, somebody will make space. So we don't Wow. have to worry. Like, it all people coming together and things just happens all by itself. So it's Wonderful. a wonderful I have one experience. question, Preeti ji. How often in the year they are meeting like this? So, like the mega, this is the Maha Dhyan Chakram USA. Every year in India, Kartal mein, right? They meet for 10 days Dhyan Mahachakram. So, Patriji started it, and it's the best time of the year to be at Kartal, to raise your energy and to be a total different personality, a high level of consciousness. Because with that energies, I'm not sure if you know, like the group consciousness, it is said that if a 2000 people meet together on one intention for certain number of hours, we bring so much shift in the consciousness in all that area, the entire city. Yeah. There's a shift in energy. So Patriji has been doing that every year in Kartal for so long. So that's why, like, there's so many changes. Some people, they say, like, there were so many crimes, but now there's no more. Accident होते थे, अब नहीं हो रहा। पानी सूखा होता था, पर अब बारिश हो रही है। There's no lack, no कमी। तो उस तरह से the shift happens. It takes time, definitely. He took like all these 10 years he was doing that. But then यहाँ पे भी अब it was his vision कि यूएस के लोग जो नहीं आ पाते हैं, why don't you guys start ध्यान महाचक्रम यहाँ Mhm. पे? So last year it happened for the first time at Dallas, and this time it is happening in North Carolina.
Raleigh, sorry, not Right, Rathgad. right. Yeah. So Yes. वहाँ पे 3 दिन का इवेंट है. Book your tickets, just be there. Anybody who can contribute, just contribute, or you can contribute anyhow by any amount or anyways. Mm-hmm. Volunteering भी करना चाहते हैं तो let me know. I can refer your name if you want to do certain volunteering work. Sure. Up to you. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Preeti ji. Thank जो you. मिनी ध्यान So much. महाचक्रम है वो these are to propagate these energies, like Mm-hmm. next year the Dhyan Mahachakram will be at some other state, and then by the time we'll raise this energy, go and meditate in every city, every state. Like next year they're targeting southwest I of see. USA. So Mm-hmm. their come together, meditate, then their local consciousness will change. More local masters will join. So I'm not sure if you are aware of that 50 Masters, 50 States program that was done 2 months back, I think, 1 month back. Yes. Yeah, So about a month. it was with that same intention that every state has a PSSM master, and every Mhm. state is practicing this kind of doing what Damayanti ji is doing, bringing everybody together, bringing masters together to bring wisdom, connect Yes. and revive yourself. You have so many TV channels, but not something like this. Yes. So PMC Hindi is doing right now. So I also volunteer for PMC Hindi. And it's Yes. been like 3 years I've been doing my service there. It's so Wow. much joy to be part of like they're striving to do their best. That Very. too just on donation. There's no sponsorship, you know. तो डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे होती है अगर हम इस बात को समझते हैं. So we see beyond, we Yes. understand how things run on donation. Yes. And Yes. it is so difficult to be at हम कह तो दिए हम क्रिएटर है, बट क्रिएट कहाँ कर रहे हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न साइंस. So we have to be that, right? Our creation have to be part of it. Yes. Fast technology, media, politics, social science, philosophy, education, agriculture, in every field we need to revive the processes. And the same space जो अभी हम बात कर रहे हैं, वही हार्ट स्पेस से क्रिएशन करना, लव से क्रिएशन करना. So the Yes. things has to change and we have to be part of it by any means. We are at very basic ground पे काम कर रहे हैं. Yeah, I just tell my Pari was laughing one day. I said, "We are like earthworm." And somebody said, "Oh, what do you say? Earthworm? Okay, I cannot understand why we are earthworm. I can think of myself like eagle, like tiger. Okay, yeah, I know, but how the earthworm is less? Yes. We are working on the ground. We have to Ground understand. level. We are making the land fertile so that we can grow things. Creation will Mm. happen. First, we need to bring our divinity here in our Yes. living, then the creator will come automatically. Definitely. Definitely. So being Yeah. a earthworm, we get cut, we still keep on moving. We go down and up, and we go to the places where there's dry, and then we die there. But still, till the life, we just like earthworm, we keep on moving, moving, moving stuff and bringing life to the soil so that we can grow Yes. things. Yes. Yes. Okay. Thank you, Preeti ji. Thank you. Share it with me, and I will pass it on to everyone. All the information regarding Raleigh. Sure, sure. And we'll talk to you soon. Thank you so much, and thank you all of you to be joining, and appreciate you. it very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you for giving Thank your you. time. Thank you, Thank you, Masters, Preeti ji. for having Thank me you. here. Thank you.